We offer project-based learning, experiential learning, learning by doing. So that was basically the main TNS का जो main idea यही था कि we felt कि learning had become very textbookish, and a lot of young people did not even understand why they were learning what they were learning, because सही है you also obviously went to school, and I'm sure you learned a lot of algebra and geometry and कोई chemistry काम and नहीं है all of things, and लोगों का ये ख्याल होता है कि यार ये मैं हाँ क्यों सीख रहा क्यों हूँ, सीख रहे हो राइट? सो TNS के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव या एस्पिरेशन ये था टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, मीनिंगफुल सो दैट चिल्ड्रन आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, और जब वो प्रोजेक्ट एक क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर दे एंड अप यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द या करिकुलम. सो जो एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि अगर जैसे ये कमरा है, तो आपने क्या इस कमरे में अगर कालीन डालना है तो ठीक है, आप 12 बाय 18, वैसे तो आप टेक्स्ट बुक में भी 12 × 18 कर सकते हैं, या you can multiply 18 by 12, 18 by 12 which is what I'm not even going to, it would be what, 180 plus 32 or whatever, right? To 12 or whatever. I hope that's not wrong. It probably is. But a better way of teaching children would be that, okay, if you're making a room and you want to, आपने कालीन खरीदना है, ठीक है, तो वो आपको how much कालीन do you do you require for require this room? Okay, so हाँ then they understand कि अच्छा हाँ 18 by 12 का कोई मकसद है. फिर अगर वो जो उसका फाइनल आंसर है, if the कालीन is 50 rupees a square foot, then you have to multiply that by 50. So you kind of begin to understand the what the process objective of mathematics is yeah हाँ in real life in a real situations. life And this is a situation very simple हाँ example I'm giving. I mean, there are of course many other components of the curriculum. So rather than asking a child to write an essay, why not get them to do a podcast, or get them to, I don't know, do a blog, or develop a I am website. also an adjunct faculty member of media in different universities so I always say कि आपने अगर सेलिंग करनी है सो जो आपको स्कूल में याद होगा कि एक बेक सेल अब बड़ी आम चीज़ हो गई है जब वी वर एट स्कूल तो बड़ी नई चीज़ होती थी पर वो जो एक्सपीरियंस है ना कि आपने वो चीज़ बनवानी उसको कम्यूट करके ला के फिर एक आपने स्टॉल सेटअप करना एंड देन पीपल योर कोलीग्स एंड योर फ्रेंड्स आर कमिंग और आपको जो सवाल पूछ रहे हैं देन यू गिविंग देम एन एक्सप्लेनेशन वो जो पूरा बेचने का प्रोसेस है वो किसी भी क्लास में बैठ के आपको समझ नहीं आ सकता जब इवन कि वो बेक्सेल जो है वो बेहतर है उस क्लास से जहाँ पर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और थ्योरी को सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं या एब्सोल्युटली, बिकॉज जब आप एक बच्चा बेक सेल कर रहा है स्कूल के अंदर, तो उसको माँ बाप ने ये भी सिखाना है ना कि बच्चे आप ये लेके तो कुकीज़ बना के कॉस्ट क्या लेके है जा रहे हैं, लेकिन उसका कॉस्ट क्या कॉस्ट है, क्या है आपने ग्रोसरीज खरीदी हाँ है, हाँ देन कितने की खरीदी हाँ है, कौन सा इंग्रेडिएंट कितना या है फिर आपकी पैकेजिंग की एग्जैक्टली, कॉस्ट फिर क्या है आपने कम्यूट की प्राइसिंग कॉस्ट किस क्या तरह है करनी है. हाँ ओके, या अगर वो आपने बैच के अंदर खरीदा है इनफ groceries to make like 2 dozen cookies, and what is the cost per cookie, what is the markup going to be, how much are you going to sell it for, so that itself is project based प्रोजेक्ट learning. So it's the best way of learning. So that was the big idea behind TNS. And we then from that decided, as we went to senior classes, we decided that the IB was best suited. In the beginning I was of the view that there should be no exams, सही है because I felt that नो exams प्रेशर are a terrible way of हाँ assessing if a child has learnt or not, because it's yeah. just creating this very high pressure environment. The child could just be stressed or unwell on that day, and they may not perform well. So we decided कि हमने examinations करने ही नहीं है. But then as we approach middle school and high school, we realized that, okay, well, our kids are not going to get into any university. So we felt then that we started looking at different options, and we felt that the IB was best suited for this approach, which was basically an inquiry-based learning approach. Right. We went on to the MYP, and then which is middle years program, which is different from O level, because O level के अंदर O level is 9, 10, 11. All right. जो MYP है वो 6, 7, 8, 9, 10 है. अच्छा ठीक तो है उसका जो असेसमेंट है वो ईयर 10 के अंदर होता है, ठीक है और फिर उसके MYP के बाद ये ऑब्वियसली ऑल दीज इयर्स का जो एक कलेक्टिवली होता है वो 10th
के अंदर आके आपका हाँ होता है। आपको हर साल कलेक्टिवली यू गेट योर ग्रेड्स, ग्रेड्स ऑलराइट, ओके, लेकिन जो एक क्यूमुलेटिव, एक्सटर्नल नहीं, क्यूमुलेटिव नहीं, हाँ अच्छा, जो एक एक्सटर्नल आपका एग्ज़ाम होता है ठीक है, वो जिसको हम ई असेसमेंट कहते हैं। ऑलराइट, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ स्कूल्स वो करती हैं, कुछ स्कूल्स नहीं करते। सही है, हम पाकिस्तान के अंदर करती हैं, एटलीस्ट TNS में और न्यूलैंड्स के अंदर करती हैं, बिकॉज over here parents expect at the very least that they're going to have some kind of external grades, because their logic is कि जी उसके बाद अगर मैंने A level कराना है बच्चे को तो what will I show the school कि इसके results क्या हैं। ठीक है। So E-assessment हम करती हैं, which is it's And it's called been done by your E-assessment school because के it is कोई थर्ड पार्टी आगे करती है IB इसको? करती है, अच्छा IB करती है, it's ठीक an है, IB assessment, सही है, so it's an E-assessment Alright. online assessment, सही है, ठीक है। and after the E-assessment then they go on to the diploma program. सो आई थिंक ये जो आपने जवाब दिया, अभी तक बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो IB में अफोर्ड भी कर सकते हैं और बच्चों को भेजना चाहते हैं, पर यूजुअली उनके दिमाग में ये आता है कि आगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगी। बट यू वेरी राइट कि अगर ये 10th के बाद आपकी वो जी जी वो हो जाएगी, तो वो आपका रिजल्ट है और ऑन दैट बेसिस यू विल गेट एन एडमिशन फर्दर इन यूनिवर्सिटी और जी कॉलेजेस, नहीं 10th के बाद तो यूनिवर्सिटी में आपको कॉलेज, कहीं नहीं मिलती, वो यू हैव टू कंप्लीट 12 इयर्स ऑफ या एजुकेशन। हाँ, सो बेसिकली वो आप वो A लेवल करें या डिप्लोमा प्रोग्राम करें, तो इसके बाद फिर मोस्ट स्टूडेंट्स गो इनटू द डिप्लोमा प्रोग्राम विच इज़ 11 and 12। सही है, उसकी दैट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय IBCC, इट हैज़ रिकग्निशन, so और you can इक्विवेलेंस get लेटर और ये सारा कुछ yeah मिलता है। you can get into अच्छा LUMS, ठीक you है, can get into a government university, you you can can get go into abroad, BNU, I mean, you can get into BNU, you can get in BNU, anywhere. हाँ, So the IB is preferred globally, at सही least है, by international universities, because they feel that it is much more closely related to the kind of experience that students have at university, meaning के जो IB के अंदर जो पढ़ाने का approach है, वो वही है जिसना हमने MBA में या मास्टर्स exactly में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, project based, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, experiential, हाँ, research रिसर्च, based, हाँ, critical thinking, हाँ, question answering. So हाँ, यूनिवर्सिटीज जो इंटरनेशनल या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो IB कैंडिडेट्स को जनरली प्रेफर करती हैं, बिकॉज दे फील दैट दोस किड्स आर गोइंग टू बी बेटर सूटेड सूटेड, टू अ क्योंकि वो यूनिवर्सिटी थिंकर्स बना एनवायरनमेंट। रहे हैं ना आप, या रादर देन कि जब वो एक आसान जबान में रट्टा मार रहे हैं, जी क्रैमिंग जी कर जी रहे हैं, जी तो आप उनको थिंकर्स बना रहे हैं कि जी वो फिर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही प्रॉब्लम में अगर मैं और आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप किसी डिफरेंट आइडिया से आएंगे, जी जी क्योंकि मैंने तो वही करना है जो मुझे किताब के अंदर मैंने जी पढ़ लिया।